Good morning, students. Today we are going to study the fourth chapter of macroeconomics, that is the methods for calculating national income. As I told you earlier, there are three activities that never stops in the economy. There are three activities that never stop in the economy, and the activities are production, income generation and expenditure. Okay, so accordingly there are three methods for estimating national income or calculating national income. The first one is product method or value-added method, second one is your income method, and third one is your expenditure method. So let us understand these methods more clearly. First one is your value-added method. It is also known as product method or net output method or industrial origin method. Now whatever value will be estimated through this method will be termed as GVA, gross value added or gross domestic product at market price. Okay, so the formula of GDP-MP is value of output minus intermediate consumption. Value of output minus intermediate consumption is the formula of GDP-MP. Now what is the formula of value of output? The formula of value of output is price into quantity. Okay, remember the formula of value of output is price into quantity. Okay, again we can write sales in place of value of output. Okay, we can write sales in place of value of output. Okay, if the entire output of the year is sold, if the entire output, if all the output is sold in the same accounting year, then we can write sales in place of value of output. Now what is the formula of GDP-MP? The formula of GDP-MP is sales minus IC if all the output of the year is sold. There is every possibility that some output remains unsold, and if some output remains unsold, then that unsold output will be termed as, will be a part of change in stock. Okay, now the formula of GDP-MP is sales plus change in stock minus IC. So we can write sales plus change in stock in place of value of output. Okay, again the formula of change in stock, the formula of change in stock is closing stock minus opening stock. Okay, so we can write sales plus closing stock minus opening stock in place of value of output. Okay, so what is the formula of GDP-MP? GDP-MP is equal to sales plus closing stock minus opening stock minus IC. Here we must remember one thing. The value output, here the output is your final goods only. Okay, now what is your IC? IC means intermediate consumption or intermediate cost. So it includes non-factor inputs only. Non-factor inputs का मतलब हो गया inputs other than factors of production. So there are, as we know, there are four factors of production: land, labor, capital and entrepreneur. तो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये चारों को छोड़ के बाकी जो चीज़ों को आप यूज़ किए हो उसके लिए जो खर्चा किए हो, दैट इज़ कॉल्ड इंटरमीडिएट कंजम्पशन और इंटरमीडिएट कॉस्ट. ओके, नाउ द सेकेंड मेथड. द सेकेंड मेथड इज योर इनकम मेथड. इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड. इट इज़ ऑल्सो नोन एज फैक्टर पेमेंट मेथड. Okay, so whatever value will be estimated through income method will be termed as NDPFC. NDPFC full form, net domestic product at factor cost. It is also known as domestic income. Clear? Now what is the formula of NDPFC? The formula of NDPFC is compensation of employees plus operating surplus plus mixed income of self-employed persons. This is the formula of NDPFC. Now the first
component. Compensation of employees again has three components. First one is wages and salaries in cash or kind. Second, employer's contribution towards social security scheme, and third one is pension after retirement. So the sum total of these three components is known as compensation of employees. So let us understand this concept with the help of an example. I am an employee of Rajkamal Saraswati Vidya Mandir. I sell my service to this institute, and for this I receive wages or salaries in cash or kind. कैश मतलब होता है मनी और काइंड मतलब सामान, ठीक है। तो हर महीने मुझे वेजेस या सैलरी मिलता है। अगेन, अदर देन वेजेस एंड सैलरी आई गेट सम एक्स्ट्रा बेनिफिट, जैसे कि आप लोग जो स्कूल में पढ़ते हो उसके लिए आप फ़ी देते हो, लेकिन मेरा बेटा यहाँ पढ़ता है कि मेरी बेटी यहाँ पढ़ती है, तो उसको किसी भी तरह का फीस नहीं लगता है, ठीक है। ये एक तरह का एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ ना। हर महीने मेरे सैलरी से कुछ अमाउंट डिडक्ट हो जाता है, और जितना अमाउंट डिडक्ट होता है उतना अमाउंट स्कूल देता है, दोनों टोटल होके वो मेरे नाम से जाके जमा हो जाता है। तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ? अगर हम यहाँ पे काम नहीं करते तो मुझे सब मिलता नहीं मिलता। उसके बाद क्या हुआ? पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट। जब हम रिटायर हो जाएंगे उसके बाद मुझे हर महीने पेंशन मिलेगा, ठीक है। इस तरह से तीनों को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो बन जाएगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। यहाँ पे याद रखने वाला एक बात यह है कि ये हो गया पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट, और एक आता है आपका ओल्ड एज पेंशन, ठीक है। ओल्ड एज पेंशन जो है ये हो गया आपका ट्रांसफ़र इनकम, और पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट हो गया आपका फैक्टर इनकम, ठीक है। तो ओल्ड एज पेंशन ट्रांसफ़र इनकम है क्योंकि इट इज़ पेड बाय द गवर्नमेंट एज ए हेल्प और चैरिटी टू द पुअर पर्सन्स। लेकिन ये जो पेंशन है ये मेरे काम के बदले मुझे मिला है, इसलिए ये हो गया आपका फैक्टर इनकम, ठीक है, पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट। नाउ द सेकेंड कंपोनेंट, ऑपरेटिंग सरप्लस। इस ऑपरेटिंग सरप्लस हैज़ अगेन ऑफ थ्री कंपोनेंट्स, ठीक है। पहला हो गया आपका रेंट एंड रॉयल्टी फॉर लैंड, दूसरा हो गया इंटरेस्ट फॉर कैपिटल, और तीसरा हो गया प्रॉफिट फॉर एंटरप्रेन्योर। तो ये जो इनकम मेथड है इसमें याद रखने वाली बात ये है कि यहाँ पे हम लोग फैक्टर्स प्रोडक्शन के साथ डील कर रहे हैं। फैक्टर प्रोडक्शन चार तरह का होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो कंपेंसेशन में हम लोग लेबर के साथ डील किए, लेबर को सारा पैसा दे दिए, जो सर्विस वो दिया उसके बदले हम उसको पेमेंट कर दिए। बच गया आपका तीन फैक्टर, लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो अगर हम लोग लैंड किसी का लेते हैं, यूज़ करते हैं, तो उसको बदले उसको रेंट या रॉयल्टी देंगे, तो उसका इनकम हुआ वो। अगर कैपिटल लेते हैं तो उसको इंटरेस्ट पे करेंगे, अगर एंटरप्रेन्योर लेते हैं, एंटरप्रेन्योरल स्किल यूज़ करते हैं तो उसको प्रॉफिट देंगे, ठीक है। जो प्रॉफिट है, ठीक है, जो एंटरप्रेन्योर कमाता है वो सारा का सारा अमाउंट उसका नहीं होता है, उसमें से कुछ अमाउंट उसे गवर्नमेंट को देना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स या कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, ठीक है। उसके बाद अगर वो एक शेयर होल्डिंग कंपनी हुआ जिसमें शेयर होल्डर्स होते हैं, तो शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट का हिस्सा देना पड़ेगा ना, उससे कहा जाता है डिविडेंड। तो कॉर्पोरेट टैक्स टू द गवर्नमेंट एंड डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स, ये दोनों पे करने के बाद जो बच जाएगा वो हो जाएगा आपका एंटरप्रेन्योर का, जिसे हम लोग कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या कॉर्पोरेट सेविंग या नेट रिटेन अर्निंग, ठीक है। तो ये तीनों को जोड़ देंगे तो प्रॉफिट बनेगा। अब प्रॉफिट के साथ इंटरेस्ट, रेंट, रॉयल्टी जोड़ देंगे तो ऑपरेटिंग सरप्लस बनेगा, ठीक है। नाउ द लास्ट कंपोनेंट इज योर मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स। अब ऐसा भी कुछ एक्टिविटी है जिसमें हम लोग ये वेजेस या रेंट या इंटरेस्ट या प्रॉफिट इसको अलग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल है, सपोज आई एम ए फार्मर और आई हैव ए स्मॉल पीस ऑफ लैंड, ठीक है। अब इस ज़मीन पे मेरे खुद के फैमिली मेम्बर्स काम करते हैं। इस ज़मीन पे जो इनपुट यूज़ हुआ है उसको जो कैपिटल है वो हम खुद लगाए हैं और हम खुद एंटरप्रेन्योर हुए। तो अगर ये ज़मीन मेरा हुआ तो ज़मीन का रेंट किसको देंगे? अपने आप को देंगे। ज़मीन पे जो वर्कर काम किए हैं वो तो मेरे खुद के फैमिली मेम्बर्स हैं, तो वेजेस किसको देंगे? अपने आप को देंगे। ये जो कैपिटल है ये पैसा हम खुद लगाए हैं, तो ये कैपिटल का इंटरेस्ट किसको देंगे? अपने आप को देंगे। और हम खुद एंटरप्रेन्योर तो प्रॉफिट किसको देंगे? अपने आप को देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो फैक्टर्स है उसके बदले जो
कंपेंसेशन मिल रहा है उसको हम लोग सेपरेट नहीं कर पाए, इसलिए इसको कहा जाता है आपका मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स। क्लियर हो गया। तो इस तरह से अगर हम लोग कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम को जोड़ देंगे तो बनेगा डोमेस्टिक इनकम या एनडीपीएफसी। अब क्वेश्चन है कि अगर हम लोग एनडीपीएफसी निकाल लिए, डोमेस्टिक इनकम निकाल लिए, तो किस तरह से नेशनल इनकम निकालेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका कन्वर्जन। तो यहाँ पे याद रखना है, तो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग उसी टर्म को लिखेंगे जो हमें फाइंड करना है, और उसका राइट हैंड साइड में उसी टर्म को लिखना है जहाँ से हमें फाइंड करना है। जैसे यहाँ पे हम लोग एनडीपीएफसी निकाल लिए हैं इसको हिसाब करके, तो राइट हैंड साइड पे हम लोग एनडीपीएफसी लिखे और लेफ्ट हैंड साइड पे एनएनपीएफसी लिखे। एनएनपीएफसी हो गया आपका नेशनल इनकम। ठीक है, अब हम लोग राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे, तो ये हो गया आपका नेट, ये भी हो गया नेट। नेट नेट दोनों समान हुआ तो कन्वर्सन नहीं होगा। अब ये हो गया डोमेस्टिक, ये हो गया नेशनल। तो डोमेस्टिक छोटा और नेशनल बड़ा, तो छोटा को बड़ा करने के लिए कुछ जोड़ना पड़ता है। क्या था दोनों के बीच में, एनएफआई, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, इसमें जोड़ दिए। अब ये पीपी समान, ठीक है, कन्वर्सन नहीं होगा। एफसीएफसी समान, इसलिए कन्वर्सन भी नहीं होगा। तो एनएनपीएफसी निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, एनडीपीएफसी प्लस एनएफआई। ठीक है, नाउ द थर्ड मेथड, नाउ द थर्ड मेथड इज योर इनकम डिस्पोजल मेथड या एक्सपेंडिचर मेथड। अब वट एवर वैल्यू विल बी एस्टिमेटेड थ्रू दिस एक्सपेंडिचर मेथड विल बी टर्म्ड एज जीडीपीएमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, अब जीडीपीएमपी का फॉर्मूला क्या हो गया, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सिंबल हो गया सी। ठीक है, प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, सिंबल हो गया आई, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सिंबल हो गया जी, प्लस नेट एक्सपोर्ट, सिंबल हो गया एक्स माइनस एम। इस तरह से जीडीपीएमपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये हो गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, अब क्या है, क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो सी है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये डायरेक्ट लिखा रहेगा। और कभी कभी क्वेश्चन में प्राइवेट की जगह पर्सनल भी लिखा रहता है, तो प्राइवेट हो या पर्सनल हो दोनों समान होता है, प्राइवेट या तो पर्सनल फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब दूसरा हो गया आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ये क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं लिखा रहता है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की जगह पे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिखा होगा। तो इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो नोन एज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है ये भी नहीं लिखा रहेगा। ठीक है, तो हमें ये निकालना पड़ेगा। तो लिखा क्या रहता है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिखा रहता है। तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर लिखा है, मतलब एनडीसीएफ, देखो ये सिंबल लिखा हुआ है एनडीसीएफ, इस एनडीसीएफ को जीडीसीएफ कैसे बनाएंगे, जीडीसीएफ मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। फिर वही कन्वर्सन वाला देखो काम करेगा यहाँ पे, जैसे ये डोमेस्टिक डोमेस्टिक समान, ठीक है, कैपिटल कैपिटल समान, फॉर्मेशन फॉर्मेशन समान, बस यहाँ पे ग्रॉस है, यहाँ पे नेट है। ठीक है ना, तो हमें नेट को ग्रॉस बनाना है, तो नेट नैरो कॉन्सेप्ट, ग्रॉस हो गया ब्रॉड कॉन्सेप्ट। तो नैरो को ब्रॉड कैसे करेंगे, बाय एडिंग डेप्रिसिएशन। सो एनडीसीएफ प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू जीडीसीएफ। तो जीडीसीएफ हो गया आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। और कभी कभी क्या करता है कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह पे वो लिखेगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अगर फिक्स्ड हो गया तो इसका मतलब ये इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। ये कौन सा इन्वेस्टमेंट हुआ, ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हुआ। लेकिन फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के साथ वेरिएबल को मतलब चेंज स्टॉक को जोड़ेंगे तब ना इन्वेस्टमेंट बनेगा। तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन अगर दिया है, अगर ये फिक्स्ड लगा हुआ है तो उसके साथ चेंज इन स्टॉक जोड़ेंगे। तो चेंज इन स्टॉक जोड़ देंगे तभी जाके ये बनेगा आपका जीडीसीएफ मतलब इन्वेस्टमेंट। और कभी कभी क्या करता है, ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है ये डायरेक्ट नहीं लिखा रहता है। कैसे लिखा रहेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन बाय हाउस होल्ड, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन बाय फर्म्स, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन बाय गवर्नमेंट। ठीक है, इस तरह से देखा रहेगा। तो ये तीनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन बाय हाउस होल्ड प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन बाय फर्म्स प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन बाय गवर्नमेंट, तीनों को अगर जोड़ेंगे तो बनेगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, ये तीनों जोड़ के ये वाला बन गया, इसके साथ इसको जोड़ दिए तो बन गया ये वाला, मतलब इन्वेस्टमेंट हो गया कंप्लीट। तीसरा, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये टर्म भी आपका क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा रहता है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट कंजम्पशन में जो पैसा खर्चा करेगा दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा रहता है। अब लास्ट हो गया आपका नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट फॉर्मूला हो गया एक्स माइनस एम।
एक्स स्टैंड फॉर एक्सपोर्ट एंड एम स्टैंड्स फॉर इम्पोर्ट, ठीक है। तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट अलग देता है तो उसको माइनस करके निकाल लेंगे। और कभी कभी नेट एक्सपोर्ट सीधा लिखा रहता है, नेट एक्सपोर्ट लिखा रहेगा तो समझ जाएंगे कि ये एक्स माइनस एम है। और कभी कभी क्या करता है, नेट इम्पोर्ट लिखा रहता है। तो अगर नेट इम्पोर्ट लिखा रहेगा तो उसको नेट एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, इम्पोर्ट का उल्टा होता है एक्सपोर्ट। तो क्या करना है, अगर नेट इम्पोर्ट लिखा है तो जो वैल्यू लिखा होगा उस वैल्यू के सामने जो लेफ्ट हैंड साइड में जो सिंबल रहेगा बस सिंबल को चेंज कर देना है। जैसे अगर मान लो नेट इम्पोर्ट -30 लिखा है तो नेट एक्सपोर्ट कितना होगा, +30 होगा। अगर नेट इम्पोर्ट +30 लिखा है तो नेट एक्सपोर्ट कितना होगा, -30। ठीक है, इस तरह से अगर ये चारों को हम लोग जोड़ देंगे सी, आई, जी और एक्स माइनस एम तो बन जाएगा आपका जीडीपी एमपी। आप इसको नेशनल इनकम पे कन्वर्ट करना है तो नेशनल इनकम का हो गया आपका एनएनपीएफसी। जैसा भी बताया आपको, इक्वल टू सिंबल जो फाइंड करना है लेफ्ट हैंड साइड में और जहाँ से फाइंड करना है राइट हैंड साइड में। तो जीडीपी एमपी तो निकाल लिया अब यहाँ से हिसाब करके। तो जीडीपी एमपी राइट हैंड साइड, एनएनपीएफसी लेफ्ट हैंड साइड। अब क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे। ये होगा ग्रॉस, ये नेट। तो ग्रॉस ब्रॉड कॉन्सेप्ट, ये नैरो कॉन्सेप्ट। तो ये ब्रॉड को अगर नैरो करेंगे माइनस करेंगे, दोनों के बीच में क्या आता है, डेप्रिशिएशन। देखो डेप्रिशिएशन माइनस कर दिए। अब ये डोमेस्टिक, ये नेशनल, डोमेस्टिक नैरो और नेशनल हो गया ब्रॉड कॉन्सेप्ट। तो नैरो को ब्रॉड करेंगे, छोटा को बड़ा करेंगे तो प्लस करना पड़ेगा। क्या प्लस करेंगे, दोनों के बीच में क्या आता है, डोमेस्टिक नेशनल के बीच में एनएफआई है तो एनएफआई यहाँ पे प्लस कर दिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को यहाँ पे प्लस कर दिए। उस तरह से पी समान कन्वर्जन नहीं होगा। अब हो गया एमपी को एफसी करना है, एमपी ब्रॉड कॉन्सेप्ट, एफसी नैरो कॉन्सेप्ट। मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में बदलना है, बड़ा को छोटा करना है। तो बड़ा को छोटा करने के लिए क्या करेंगे, दोनों बीच में आता है एनआईटी, तो एनआईटी को यहाँ पे माइनस कर दिए। इस तरह से एनएनपीएफसी मतलब नेशनल इनकम अगर निकालेंगे एक्सपेंडिचर मेथड में तो फॉर्मूला हो जाए जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिशिएशन प्लस एनएफआईए माइनस एनआईटी। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये तीनों मेथड क्लियरली समझ लेना और न्यूमेरिकल बनाने का कोशिश करना, ठीक है। और कोई भी डाउट होगा तो मुझे कॉल कर लेना। थैंक यू वेरी मच।